Hi everyone and welcome to GS Simplified for UPSC. In today's video, we would be discussing about the recent Hamas attack over Israel, in which officially around 1500 civilians are dead across the two borders. So, to understand this topic in a comprehensively manner, why this conflict is going on for years and years, we need to understand the historical reason of this conflict. So, thereafter, we would see the recent attack in the backdrop of Abraham Accords, improving Israel and Saudi Arabia relation. Saudi Arabia is considered as a major leader in the Muslim or Arab world. Thereafter, how Iran helped Hamas. Around 70% of weapon, Hamas weapons are delivered by Iran. सो अब हमें ना इसका हिस्ट्री इसकी अच्छे से जाननी चाहिए। तो बेसिकली जो जेरूसलम है वहाँ पे ना थ्री रिलीजन्स अमर्ज हुए हैं। हाउ? तो सबसे पहले हाउ क्रिश्चियनिटी रिलीजन इज लिंक्ड टू जेरूसलम। जीसस क्रिस्ट वाज बोर्न इन बेथलम। दिस इज वेरी नियर टू जेरूसलम। एक तो ये रीजन है। उसके बाद जो मेजर रीजन है वो है कि जो यहाँ जो इनके जीसस क्राइस्ट थे उनको जो क्रूसीफाई किया गया था, उनको क्रूसीफाई किया गया था। सम सेक्ट बिलीव दैट ही वाज क्रूसीफाइड एट दिस प्लेस which is called the Holy Sepulchre, Church of Holy Sepulchre. Okay, so यहाँ पे क्या विद इन क्रिश्चियनिटी ऑल्सो देर आर डिफरेंट सेक्ट। लाइक इन इंडियन वी हैव वैष्णव सेक्ट, सेवाइट सेक्ट। तो ऐसे ही वहां पे भी डिफरेंट सेक्ट है। सीरियन क्रिश्चियन, रशियन क्रिश्चियन, देन कैथोलिक क्रिश्चियन, they have different views. So for all, this is a holy place for them. Like सीरियन क्रिश्चियन बिलीव दैट रिसर्कशन यहाँ नहीं हुआ था, क्रूसिफिकेशन यहाँ नहीं हुआ था, क्रूसिफिकेशन कहीं और हुआ था। यहाँ पे क्रिस्ट की बॉडी लेके आए थे एंड यहाँ पे उसका क्लीन की गई थी बॉडी। Okay, so when you will visit this place you will see there are 3 4 church of different sects. Okay, so even today there are various sect, and there is a 8800 years old practice. So these sects do not believe each other, they do not have faith among them. तो वो क्या करते हैं कि whenever they have to close the church in the evening, there is a practice that they give keys to the Muslim family, as they believe that the Muslims will not have an interest in church. So this practice is still going on. So this is how Christianity is linked to Jerusalem. ओके, उसके बाद हम आएंगे कि लाइक इस्लाम, हाउ इस्लाम इज लिंक्ड। लाइक इट इज बिलीव दैट द मोहम्मद पैगंबर फ्रॉम डोम ऑफ रॉक, दिस इज डोम ऑफ रॉक, दिस इज डोम ऑफ रॉक। इट इज बिलीव्ड कि मोहम्मद पैगंबर फ्रॉम हेयर विद एंजल Gabriel went to the heaven on his horse Burak. So here this is Al Aqsa Mosque built. This is the third holiest place in Islam after Makkah and Medina. So that is why for Arabs this is the most important, third most important place. Now thereafter for Jews it is the place of the origin of their religion. First temple Solomon was built here, which started the Jew empire. This was however destroyed by the Roman attack. The second temple, which was built by the king Herod, goes by the name of Herod's temple. This was destroyed by Roman in 70 AD. But यहाँ पर एक western wall बच गई. Temple was destroyed, but there is a western wall which is still there, and this is considered the holy place. So अब मैं आपको ये बताता हूँ through this picture. So basically क्या है कि this is that western wall. एंड दिस इज दैट अल अक्सा मोस्क। सो अब क्या होगा कि इसको हो बाइफरकेट ही नहीं कर सकते ना, दिस प्लेस कैन नॉट बी बाइफरकेटेड
because they are on like this. The UN, when was proposing the solution, so this cannot be bifurcated. Okay, so that is why it is said that कि जेरूसलम को एक इंटरनेशनल सिटी या फिर अंडर द जुडिक्शन ऑफ यूएन रखना चाहिए. Otherwise, both like Palestine or the Israel will not be ready. Okay, so now this has become a religious and national issues, religious national identity. Okay, so that is why this is very complex, very difficult to solve. From my perspective, the solution, only solution would be, because no country, Palestine or Israel, will be ready to hand over this Jerusalem to other Israel uh, or Palestine to Israel. So इसका एक ही solution है कि like there should be international jurisdiction of Jerusalem. Okay, so अब हम आएंगे what was the history. So basically this is the map. This is Lebanon, Syria, Jordan, and Egypt. This is Gaza Strip. This is Western Bank. Here, this is around Jerusalem. This is Israel, and this is Golan Heights. So this is the map. So this shows कि different type of government are there. Like the red color, Palestine governance. Then this is Israel governance. This is mixed governance here. Okay. Thereafter, Israel military presence is here in these regions. So see it through map. So there are violent clashes going on since the birth of Israeli state in 1948. Violent clashes are still going on, and the today's, if the recent attacks are the manifestation of that violence only. Okay, so what was the early history of Israel Palestine conflict? This goes back to 1700 BC. Following the call of God, three patriarchs of Jewish people, Abraham, Isaac, and Jacob, they settled in the region here and established their own like kind of kingdom. तो इन्होंने अपना यहाँ पे अपना एस्टेब्लिश किया दिस रीजन, और अपना एक किंगडम एस्टेब्लिश किया. दिस वाज कॉल्ड द लैंड ऑफ इजराइल. दिस वाज कॉल्ड लैंड ऑफ इजराइल. उसके बाद आता है कि देर आफ्टर किंग स्टार्टेड लाइक किंग सोल, ही स्टार्टेड द इजराइल monarchy. उसके सन किंग डेविड, ही स्टार्टेड, ही मेड जेरूसलम एज हिज कैपिटल सिटी. Thereafter, the king Solomon, he built the first temple at Jerusalem, which was destroyed by the Roman. So from here only, these Jewish people are facing aggression, killings, have to leave their palaces. Okay. Thereafter, after King Solomon death, it divided into two places: Kingdom of Israel and Kingdom of Judah. So thereafter, like Roman attacked it in around 63 BC, and they gave Palestine name to the name. is ना जुडा नाम था ना इसराइल का, उसको नाम चेंज करके पैलेस्टाइन रख दिया. पैलेस्टाइन टू ब्रेक जूइश कनेक्शन विद द लैंड. यहाँ से फिर पैलेस्टाइन नाम आया इसका. ओके. उसके बाद फिर क्रिश्चियनिटी भी अराउंड 63 BC become a dominant religion. Okay, and which also have its origin from Jerusalem. So around 636 BC, there were three religions: Judaism, Christianity, and Islam. Okay, so they were facing this
from from Seljuk Empire, like this is, you can consider it as Islam Empire. They were facing persecution from this Islam Empire. So Dome of Rock was built on the ruin of the second temple during this 632 BC AD. जो ये डोम ऑफ रॉक था, जहाँ पे बिलीव किया जाता है कि मोहम्मद पैगंबर अपने घोड़े के साथ हेवन में चले गए थे विद गैब्रियल एंजल गैब्रियल। तो यहाँ पे फिर उन्होंने अपना वो बना लिया, डोम ऑफ रॉक बना लिया, जहाँ से वो गए थे, जहाँ पे उनका सेकंड टेम्पल था, जिसकी वजह से डिड दिस बिकम अ होली सिटी फॉर जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। ठीक है। ड्यू टू द क्रूसेड ऑफ सेल्जुक एम्पायर इन एन एम्बिशन टू एक्सपेंड देयर टेरिटरी, Christian in Europe launched several crusades to bring holy place back to the hand of Christian। तो हुआ क्या, पहले यहाँ पे लड़ाई जो थी वो ज्यूस के साथ नहीं थी, पहले लड़ाई होती थी बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड द इस्लाम। तो जो सेल्जुक अंपायर थे फॉर देयर पॉलिटिकल एम्बिशन वर एक्सपेंडिंग, एंड इसमें क्या हो गया, जो यूरोप में क्रिश्चियन थे वो दे स्टार्ट कमिंग बैक टू हेयर टू रिक्लेम देयर होली लैंड। सो इसके बीच में क्या होगा कि मैनी ज्यूज वर किल्ड, other were making pilgrimage everywhere, mostly in European countries। तो they start moving to the European countries, यहाँ से उनका यूरोपियन कंट्रीज में जाना स्टार्ट हुआ। okay, so this is for 11th century they are coming here। okay, from 1517 to 1917 this was an part of Ottoman Empire, and it was called like a kind of Islamic superpower, and the land was unofficially called Palestine। सो दिस वाज द, मतलब 1917 से पहले ये सीन था कि ओटोमन एम्पायर। सो बट ओके, उसके बाद होगा फिर ये होगा कि यहाँ पे ना एक मूवमेंट स्टार्ट हुई है बिटवीन 1850s ऑनवर्ड्स, देर स्टार्टेड अ मूवमेंट कि ये जो ज्यूज जो यहाँ पे माइग्रेट कर गए थे इन वेरियस पार्ट ऑफ द यूरोप, दे स्टार्टिंग हैव दिस मूवमेंट वाज कॉल्ड जायोनिज्म, which believe that there should be a Judaism का एक ना नेशनैलिटी एंड देयर शुड बी अ नेशन ऑफ इट, उनका एक खुद का नेशन होना चाहिए। तो ये एक मूवमेंट स्टार्ट हुई जिसकी वजह से ये सारे फिर यहाँ पे दोबारा से माइग्रेट करेंगे, दे स्टार्ट माइग्रेटिंग अगेन हियर। सो दिस वाज लाइक दिस वाज दैट मूवमेंट, like this was the Jews who will it may have the right to their state, like this was। तो एक जर्निज्म मूवमेंट स्टार्ट हुई दैट जुडाइज्म वाज नॉट अ रिलीजन, जस्ट अ रिलीजन बट अ नेशनैलिटी, वन दैट डिजर्व अ नेशन। आफ्टर सेंचुरीज ऑफ परसिक्यूशन मैनी बिलीव कि अब जूइस को अपना एक उनका खुद का स्टेट होना चाहिए। सो दे व्हाट दे सो दे हिस्टोरिक होमलैंड को देखा कि हाँ हम अपना ये यहाँ पे अपना वो बना सकते हैं स्टेट। ओके, सो दिस वाज अ मैप कि हाँ यहाँ पे जूइश पॉपुलेशन कैसे बढ़ी, लाइक 1880 में अराउंड 10,000 है। तो दिस इज द ग्राफ इज गोइंग ऑन अप साइड अप साइड अप साइड। सो यहाँ पे एक ये रीजन हो गया। उसके बाद फिर 20th सेंचुरी में लाइक ये दिस शोइंग कि दे आर रिटर्निंग बैक टू देयर प्लेसेस। अब ओटोमन एम्पायर हार गया, सो देयर आफ्टर कम द ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल हुआ तो यहाँ पे ना उन्होंने फिर काफ़ी जोन्स में बांटा है इसको। दिस वाज फ्रेंच जोन, देन दिस वाज ब्रिटिश जोन। सो पर्टिकुलरली कमिंग टू दिस पैलेस्टाइन, सो ये जो रीजन था इसको बोला गया ब्रिटिश मैंडेट फॉर पैलेस्टाइन, दिस वाज इंटरनेशनल जोन। सो हेयर ब्रिटिश ने प्रोमिस किया इसराइल को टू एस्टेब्लिश होमलैंड फॉर इजराइल पीपल, कि हाँ हम इसराइलीज के लिए, दोज हु आर फेसिंग परसिक्यूशन फ्रॉम सेंचुरीज, हम उनके लिए एक होमलैंड बनाएंगे हियर। सो व्हाट दिस वाज सेड इन बाल्फोर डिक्लेरेशन इन 1923। सो लाइक दिस इज, I have a much pleasure in conveying to you, on behalf of His Majesty Government, the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspiration, which has been approved by the cabinet. Okay, so this was Balfour Declaration.
फिर हुआ यूं कि पहले क्या हुआ, ब्रिटिश ने यहाँ पर ना जूइस की इमिग्रेशन अलाउड कर दी। बट जैसे ही इमिग्रेशन अलाउ करी तो दे वर कमिंग इन ह्यूज नंबर सेटलिंग हेयर एज अ प्लांटेशन वर्कर, स्टार्टेड देयर ओन प्लांटेशन। उसकी वजह से क्या हुआ कि विद टाइम दे स्टॉप्ड immigration of Jews. Also 1935 to 40 जो होलोकॉस्ट भी हो गया था उनके अगेंस्ट। ठीक है, तो उसकी वजह से दे स्टॉप्ड द इमिग्रेशन ऑफ ज्यूज। सो फिर हुआ क्यों, फर्स्ट ज्यूज वर फाइटिंग विद अरब्स, बट देर आफ्टर ज्यूज स्टार्टिंग फाइटिंग विद अरब्स along with resisting ब्रिटिश स्टेट। ओके, तो उनको भी ये स्टेट कर दिया। तो ये वहाँ के ज्यूज वांट टू फाइट एज ज्यूज, दिस वाज लाइक वहाँ की अपनी इनकी एक बॉडी स्टार्ट होने की राइट विंग। ठीक है, टू फाइट लोकल अरब्स एंड टू रेजिस्ट ब्रिटिश रूल। सो देर आफ्टर केम द होलोकॉस्ट। Around, you could not even imagine that during that time जो ज्यूज की जो पॉपुलेशन थी ना 1.3 करोड़ थी, 1 करोड़ 30 लैक्स। सो उसमें से अराउंड 60 लाख ज्यूज वर किल्ड। अराउंड, यू कैन इमेजिन, अराउंड 40% of the population of Jews was killed. This was called a pogrom, genocide, gas chamber. So, if you want to see a movie on this Holocaust, you can see Life is Beautiful. इस मूवी में क्या होता है कि बेसिकली अ फैमिली वाज सेंट टू द कंसंट्रेशन कैंप एंड दे नो दैट कि अब कभी ना कभी उनको मरना है ही है। तो दे वर हैविंग अ स्मॉल चाइल्ड। तो उसके फादर ने क्या किया कि हाँ कि दैट सो दैट उसका जो लड़का वो डरे ना, तो ही सेड कि ये जो सब कुछ चल रहा है ना ये एक मूवी है, लाइक इट्स अ ड्रामा, कि अब ये होगा, अब ये होगा, अब हमें वो ले जाएंगे, हमें वहां ले जाएंगे, तो तुम्हें डरना नहीं है, एक मूवी का पार्ट है। ओके, बिको देखो पता उनको था ही कि कभी ना कभी इनको मरना है। ठीक है, फिर वो क्या करता है कि वो कहता है कि अब वो मुझे ले, अब जब वैन उसके फादर की ड्यूटी आई, वो आई कि उनको फादर को लेके जाना था, तो उन्होंने बोला कि तुम अपने बॉक्स में छुप जाना और वो मुझे लेके जाएंगे। इट्स अ पार्ट ऑफ द फिल्म, तुम्हें डरना नहीं है बिल्कुल भी। ओके, सो ये आप मूवी जरूर देखना, लाइफ इज ब्यूटीफुल। अब होएगा द हाउ द बर्थ ऑफ इजराइल स्टेट। So this was an assembly in US, which says the Jewish people aren't 60 lakh Jews dead enough. Americas for Jewish Palestine. बेसिकली हुआ ही होता कि जो ये जो Jewish people है ना, इसराइल वाले, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। जहां भी ये जाते हैं वहां पे ये हार्ड वर्क करके अपना इकोनॉमिक पोजीशन अच्छी करते हैं। तो दे हैव देयर ओन लॉबी इन अमेरिका, अमेरिकन सेनेट। दैट्स वाई फ्रॉम स्टार्टिंग दे हैव सपोर्ट फ्रॉम यूएस। तो वहां से फिर इनके फॉर अ सेपरेट वो आ चुका था कि हाँ इनका एक अलग से नेशन होना चाहिए। ओके, उसके बाद हम बोलेंगे ये लाइक दिस इज अ कैंपेन टू डिसाइड द डेस्टिनी ऑफ अ होल पीपल। नवंबर, ये वैसे इसमें लिखा है कि हाँ कि आफ्टर अराउंड 200 years old dream came true. Jews are going to have their own independent nation. सो दिस इज, ये इसमें लिखा हुआ है। ओके, ये उस टाइम की थी। सो यूएन ने प्रपोज किया कि हाँ लाइक ज्यूइश हैव देयर ओन स्टेट, अरब स्टेट पैलेस्टाइन एंड अरब स्टेट जेरूसलम विल बी अ स्पेशल इंटरनेशनल जोन। तो ये सॉल्यूशन रहा कि ये जो स्टेट होगी ये पैलेस्टाइन होगी और ये जो ये था इसको हम यूएन के जुरिडिक्शन में रखेंगे। सो दिस वाज आई थिंक द बेस्ट सॉल्यूशन। बट अब ये क्या हुआ, ये दिस इज अ कार्टून, लाइक यू गेट योर स्टेट, यू गेट इंडिपेंडेंस पैलेस्टाइन एंड वी आर लिविंग दिस मैस। तो ब्रिटेन व्हाट हैव दे डन इन केस ऑफ इंडिया ऑल्सो, दे व्हेन दे थिंक दैट, उन्होंने बीच में ही
uh, without taking the responsibility of the killings due to the partition. They left in the middle. यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि मैस क्रिएट करके वो भाग गए, वैसे ही उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के उसमें किया था. And now these Western countries are becoming the champion of human right when they have violated so much of human right of the colonial countries. Okay. ओके. सो अब ये इस जो यूएन ने जो सॉल्यूशन प्रपोज किया उसको ना, इन्होंने जो अरब अरब ने क्या देखा कि हाँ, कि यूएन डिसीजन एज जस्ट अ यूरोपियन कोलोनिज्म ट्राइंग टू स्टील देयर लैंड. सो दे डिडंट एक्सेप्टेड दिस यूएन प्रपोजल. ऑल्सो एक इसमें हुआ कि जो जूइस की पॉपुलेशन थी वो 1/3 पॉपुलेशन थी, बट दे वर ग्रांटेड मोर लैंड. उसकी वजह फिर से भी जो अरब कंट्रीज थी उनको ये जो सॉल्यूशन था वो इनको डिनाई कर दिया एंड दे स्टार्टिंग रिबेलिंग. तो यहाँ से 1948 में इसराइल भी बर्थ हुआ और वॉर स्टार्ट हो गए. दिस वाज द वॉर फ्रॉम ऑल साइड, ऑल साइड. देर आफ्टर हम बोलेंगे टू दे ऑल, मतलब उनको एस्टेब्लिश करना था टू एस्टेब्लिश यूनिफाइड अरब पैलेस्टाइन. तो ये 1948 अरब वार हुआ. ओके. इसराइल वोन द वॉर. तो यहाँ से सारी कंट्रीज, इजिप्ट, जॉर्डन, इराक, सीरिया, लेबनन, दे ऑल अटैक्ड एंड अटैक वाज. तो इसमें क्या हुआ, देर वाज पीस ट्रीटी साइन हुई थी. तो वेस्ट बैंक वाज कंट्रोल्ड बाय जॉर्डन, गाजा स्ट्रिप वाज कंट्रोल्ड बाय इजिप्ट. दिस वाज द सिचुएशन एंड दिस वाज ऑल कंट्रोल्ड बाय इसराइल. तो ये चल हो गया. तो इन बिटवीन like the Jew these Palestinians around 1 million were expelled. They have to take uh, a pilgrimage to वेरियस कंट्रीज लाइक दिस मैप शोज कि कईयों को यहाँ गाजा में जाना पड़ा, इजिप्ट, देन इसराइल, देन जेरूसलम, जॉर्डन, सीरिया, लेबनन. मतलब यहाँ पे इनको फिर जाके भागना पड़ा एंड हैव टू टेक द पिलग्रिमेज. सो अल्टीमेटली इन दिस होता क्या है कि अल्टीमेटली पीपल हैव टू सफर. पीपल हैव टू सफर, कॉमन पीपल. द पॉलिटिकल लीडर्स, the head of the organization who planned these attacks, they do not face burnt of classes. लाइक अभी हम रिसेंट भी देखे कि हमास के चीफ ने ऑर्डर कर दिया कि हाँ आप यू स्टार्ट गोइंग अटैक. उसका क्या बिगड़ रहा है, उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा है ना. ही इज डूइंग, ही वुड बी इन अ सेफ हेवन. बट अल्टीमेटली व्हाट, कॉमन पीपल आर किल्ड ना. इन रिटेलिएशन इसराइल विल किल पैलेस्टाइन, कॉमन पीपल. ठीक है. ये फिर चीज टेंशन बढ़ती रहेगी, टेंशन बढ़ती रहेगी. अल्टीमेटली मतलब इस लड़ाई के बीच में होता कुछ नहीं है, बीच में एक आम आदमी ही मरता है. ओके. उसके बाद 6 डे वॉर. व्हाट वाज दैट 6 डे वॉर? तो ये कि 6 डे वॉर था, इसमें फिर सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट ऑल्सो अटैक अगेन अटैक्ड. बट इसमें इसराइल वॉन एंड इट सीज्ड गोलन हाइट्स फ्रॉम सीरिया. सीरिया से इसने गोलन हाइट्स ले ली. एंड फ्रॉम जॉर्डन इट टुक वेस्ट बैंक. एंड फ्रॉम इजिप्ट, नॉट डेट, ना कि इसने गाजा स्ट्रिप तो ले ही ली, उनका जो सिनाई पेनिनसुला था, ये दिस इज सिनाई पेनिनसुला, ये भी ले लिया. तो मतलब इसराइल ने इस वॉर को बहुत ही अच्छे से जीता. तो इसने सब कुछ अपने उसमें ले लिया. सो आफ्टर दिस वॉर अमेरिका ब्रोकर्ड इन बिटवीन एंड उसके बाद हुआ क्या, कैंप डेविड अकॉर्ड्स हुए. वाई दिस इज कॉल्ड कैंप डेविड? बिकॉज कैंप डेविड इज अ प्लेस इन अमेरिका. सो एट दैट टाइम अमेरिका वॉज indulging everywhere, especially in Middle East. And why in Middle East? Because it was dependent on oil. ये उस टाइम पे कहा जाता था कि अमेरिका यूज्ड टू से कि फॉर एवरी ड्रॉप ऑफ ऑयल वी विल शेड ब्लड.
Okay, so this was American president. mm, this was Egypt president, and this is Israel PM. So इनके बीच में कैंप डेविड अकॉर्ड्स हुआ. उसमें बेस ये दिस इज अ कार्टून विच इज शोइंग दैट Israel PM, then US president, and it is using this Egypt president for what? For this oil. Okay. So उसके बाद इसमें क्या क्या हुआ? Egypt regains Sinai Peninsula in that was lost in 1967. Israel can use the Suez Canal, and Egypt recognized the Israel statehood. For this, Sadat, that president of Egypt, and Beni, the PM of Israel, they got Nobel Peace Prize. However, this was not liked by the Egypt right wing. So he was assassinated at an आर्मी परेड में उसको असैसिनेट कर दिया. हाउएवर उसके बाद फिर जो वाइस प्रेसिडेंट थे उस टाइम के, होस्नी मुबारक, ही बिकम द प्रेसिडेंट. उसने जो सारी ट्रीटीज थी जो कैंप डेविड में साइन हुई उनको आगे अफर्म किया. एंड नाउ देयर इज अ पीस बिटवीन इजराइल एंड इजिप्ट. ओके, सो दिस शोज दैट पीस इज ऑल्सो पॉसिबल. सो अब उसके बाद हम आता है कि जो PLO ऑर्गेनाइजेशन थी, दिस वाज ऑर्गेनाइज इन इजिप्ट कायरो in 1964 to liberate Palestine from Israeli. Okay, so उसमें क्या हुआ? It's from Jordan. It started violent activities against the Israel. Thereafter, it was forced to move to Lebanon. From here, it continued its exercise. So अब उसके बाद होगा कि इसराइल ने यहाँ पर रेड भी किया इन लेबनन 1982 में, टू मतलब कि यहाँ से उसको पैलेस्टाइन को रिमूव करने के लिए. ठीक है. देर आफ्टर होता क्या है कि द फर्स्ट इंटिफाडा. इंटिफाडा इज अ लाइक अरेबिक वर्ड विच मीन्स अपराइजिंग. वट डज दिस वर्ड मीन नाउ? सो बेसिकली क्या है कि एक ये जबालिया कैंप था इन गाजा. ठीक है. उसके बाद इसमें क्या हुआ कि ड्यू टू आर्मी के जो इसराइल के जो आर्मी के ट्रक्स थे, उनसे ना पैलेस्टाइन के पर्सन इन एन एक्सीडेंट वर किल्ड. उसकी वजह से दे स्टार्टेड एन अपराइजिंग. दिस वाज कोल्ड इंटिफाडा. ये 5 साल के लिए चली. उसके बाद फिर क्या होगा? दे वुड बी ओस्लो अकॉर्ड्स. ओस्लो अकॉर्ड्स. ठीक है. सो दिस इज PLO चेयरमैन यशर अराफत. ठीक है. और एक और इससे पहले एक और रीजन करेंगे हम कि जो ये जो वेस्ट बैंक में जो ये थे ना, ये विच वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ इसराइल टिल द ओस्लो अकॉर्ड. तो यहाँ पे फॉर द रिलीजियस पर्पस पर्सन्स वर कमिंग, पॉलिटिकल पर्पस. ठीक है. पर्सन्स वर कमिंग एंड देयर वाज अ चीप हाउसिंग हेयर. इसकी वजह से यहाँ पे जो इजरायली सेटलर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए. सो दिस इज शोइंग द मैप. So from 1970, this is on up and like this. There are around 8 lakh people Israeli here. So ये हुआ. उसके बाद फिर this intifada was going on. So there was Oslo Accords 1993 signed. This was also brokered by US. ओके. तो इसमें क्या हुआ? पैलेस्टाइन अथॉरिटी वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. पैलेस्तीन अथॉरिटी थी जो PLO के अंडर थी, वो रिकॉग्नाइज की गई. सो व्हाट वाज, जो ये ग्रीन डार्क ग्रीन है ना, यहाँ पे पैलेस्टाइन का सिविल रूल चलेगा, सेल्फ रूल. और जो ये लाइट ग्रीन है, दीज यहाँ पे सिविल रूल तो मतलब गवर्नेंस, डे टू डे गवर्नेंस विल बी लुक्ड आफ्टर बाय पैलेस्टाइन, बट जो सिक्योरिटी रहेगा वो रहेगा बाय Israeli government. And this is blue is totally controlled by that. तो मीन वाइल क्या हुआ कि 1987 में हमास हुआ था. उसका हम बाद में पढ़ेंगे, हमास हाउ इट वाज फॉर्म्ड.
So hardliner on both sides opposed the Oslo Accords. Members of Hamas, this is a Sunni sect, launched suicidal bombings. इवन इन इसराइल, इसराइल में भी क्या हुआ, इसराइल राइट प्रोटेस्ट कॉल्ड पीएम रेबिन एज ट्रेटर. दे कंपेयर्ड हिम एज a Nazi who do not have interest for the Jewish people, and he was killed at a rally. Okay, so this shows that how extremists on both sides use violence to derail peace. Even if there are some slight chances to get peace, but the right wing forces on both sides of the, like, this is a normal story of every country. Okay, so like both wanted peace, but this is how violence derailed the peace. Okay, Camp David 2 हुआ 2000 में, but however this was, there was no conclusion, it went empty. उसके बाद फिर होएगा सेकंड इंटिफाडा 2000 टू 2005. इसका क्या रीजन था, इसका रीजन था कि जो इसराइल के जो पीएम थे अराइल शेरोन, ही विजिटेड जेरूसलम वेस्टर्न वॉल. तो मैंने जो आपको बताया था वेस्टर्न वॉल थी जो, वहां पे उसने गया और वहां पे प्रे कर, ही स्टार्टेड प्रेइंग. सो हुआ क्या, दिस क्रिएटेड अपराइजिंग अमंग द पैलेस्टाइन. सो यहां से फिर सेकंड इंटिफाडा स्टार्ट हुआ. तो बेसिकली इसमें बहुत ही ज़्यादा वो मारे गए, इजरायली एंड पैलेस्टाइन बोथ. सो हाउ हमास कम, सो दिस वाज अ ग्रुप इन गाजा, गाजा पट्टी, पट्टी या स्ट्रिप बोलते हैं जिसको, 1987 में. इट इज अ सुन्नी ग्रुप which is like the basic, अभी जो अटैक हुआ है, this was sponsored, this is was done by the Hamas, sponsored by Iran most probably. So this is a group in Gaza considered PLA as too secular and too compromise minded. So they created a violence extremist group dedicated to Israel destruction. So even it fought against the Palestine, PLA. It fought against Israel and it also fought against PLA. So even it won election in Gaza Patti. It won election, and now it is this Gaza Strip is being controlled as a by this Hamas government. ओके, सो इसमें फिर क्या हुआ कि यहाँ पे वो आ गया, हमास कंट्रोल्ड हो गया गाजा स्ट्रिप में, बट इजराइल डिड इट इज, इट पुट इट इन अ सफोकेटिंग ब्लॉकेड, हर तरीके से इसको ब्लॉकेड कर दिया, सो दैट ऑल सप्लाईज ऑफ एसेंशियल प्रोडक्ट्स आर नॉट डिलीवर्ड हेयर, ड्यू टू विच अनएम्प्लॉयमेंट रोज टू 40%. अब ये होगा कि जितना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगा, सो देर विल बी नो प्रोस्पेरिटी, नो डेवलपमेंट, नो एजुकेशन. एंड दिस, इससे क्या होगा, ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो पीपल विल बी इजिकली रेडिकलाइज टू ज्वाइन, तो इससे चीज़ें और वर्स हो जाती है. ठीक है, तो इन बिटवीन लाइक ऑपरेशन कास्ट लीड, दिस वर द ऑपरेशन डन बाय इजरायली गवर्नमेंट, ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफेंस 2012 2014, दीज आर, मतलब ये ऑपरेशन उन्होंने किए. अब उसके बाद क्या होगा कि दिस हमास and SPLA, they signed agreement. Uh, uh, they signed like a peace deal between that they will be form a government, or like they will not fight in between, अपने साथ नहीं लड़ाई करेंगे, they will fought against Israel. However, this Hamas is a violent terrorist organization. अब 2018 में क्या हुआ, यूएसए फ्रॉम इट्स तल अवीव, जो इसराइल की कैपिटल है, उससे उसने अपनी एम्बेसी जेरूसलम में शिफ्ट कर दी. दिस वाज सीन एज अ लाइक पैलेस्टाइन में, इट वाज सीन एज अ यूएस सपोर्ट टू इसराइल जेरूसलम. देर आफ्टर अब होगा कि 2021 में भी यहाँ पे अगेन हमास से जो बहुत सारे अटैक हुए थे, लाइक वेरियस अटैक्स, दिस वाज इन रिटेलिएशन ऑफ इसराइल. Again the same thing is happening, but this is now happening on a big scale. Like आपने देखा होगा कि इंसिडेंट की म्यूजिक कंसर्ट वाज गोइंग ऑन, एंड दिस हमास
rebels killed around, brutally killed around 400 people. So वो जो अभी recent incident हो रहा है, we will, I would make a separate video out of that. So at that time this peace was brokered by Egypt, Lebanon and UN. Okay, so what is the brief summary of this? Like बाल्फोर डिक्लेरेशन हुआ 1917 1923 में, ब्रिटेन withdrew from that Palestine. Thereafter UN partition plan. Most Jews in Palestine accepted, but the Arabs को ये पसंद नहीं आया. उसके बाद हो गया कि they attacked. Thereafter 1948 में that Egypt, Lebanon, Syria combinedly attacked. Thereafter PLO was formed in 1964. 6-day Arab War between Israel and that. तो गोलन हाइट उन्होंने सीज कर लिया सीरिया से, वेस्ट बैंक एंड ईस्ट जेरूसलम फ्रॉम जॉर्डन एंड सिनाई पेनिनसुला एंड गाजा स्ट्रिप फ्रॉम इजिप्ट. उसके फिर यूएन को एक ऑब्जर्वर स्टेटस भेजा वहां पे. कैंप डेविड अकोड्स, द फाउंडिंग ऑफ हमास 1987, फर्स्ट इंटिफाडा 1987 से 93. उसके बाद फिर क्या होगा, ओस्लो अकॉर्ड्स होंगे, ओस्लो अकॉर्ड. ठीक है, ओस्लो अकॉर्ड हुआ. इजराइल पैलेस्टाइन ब्लॉकेड, ये जो सेकंड इंटिफाडा था उसमें हुआ. हमास विक्ट्री इन पैलेस्टाइन अथॉरिटी इलेक्शन 2006. उसके बाद पैलेस्टाइन की मूवमेंट स्प्लिट हो जाती है दोनों उसमें. ठीक है, उसके बाद फिर होगा कि लाइक आई टोल्ड कि फतह एंड हमास फॉर्म्ड अ यूनिटी गवर्नमेंट थ्रू डिस्टर्स रिमेन्स बिट, मतलब उनके बीच में जो डिस्टर्स था उसको रिमूव करके उन्होंने एक यूनिटी गवर्नमेंट फॉर्म करी 2014 में. सो अब उसके बाद टेरिटरी पजल क्या है कि वेस्ट बैंक है. तो वेस्ट बैंक इज अ लाइक, वेस्ट बैंक ये यहाँ पे समझ सकते हैं आप, ये जॉर्डन है, यहाँ पे वेस्ट बैंक है, ये इजराइल है, ऐसे समझो. तो इट इज अ सैंडविच बिटवीन इजराइल एंड जॉर्डन, डी फैक्टो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ पैलेस्टाइन. इजराइल टुक इट इन द 1967 वॉर. तो गाजा स्ट्रिप बिटवीन इजराइल उसके इजिप्ट उसमें है. ठीक है, और गोलन हाइट्स, why it is a strategic plateau that Israel captured from Syria in 1967 war. अब पैलेस्टाइन अथॉरिटी है जो ओस्लो कोड्स में बनी थी 1993 में. ठीक है, फतह, it was found by late Yasser Arafat in 1950s, largest Palestine political faction. Though they are mostly secular movement, but now they have a deal with Hamas also. Regarded as a terrorist organization. Hamas is regarded as a terrorist organization. It won election 2006. अब ये ना, why it is so much difficult, कि वहां के बीच में पीस लाना क्यों डिफिकल्ट है. एक तो मैंने आपको बेसिकली बताया कि यार इट इज़ अ रिलीजियस इशू. रिलीजियस इशू है तो नो कंट्रीज लाइक पैलेस्टाइन विल बी रेडी टू गिव देयर होली प्लेस टू Jews. In the same manner, Jews will not be ready to give their holy place to Palestine. So what could be the solution? इसका solution यही हो सकता है कि इंटरनेशनल हो, कि जो जेरूसलम हो देयर शुड बी इंटरनेशनल जुरिडिक्शन. सो बोर्ड ऑफ नो कंसेंसस. सो अब क्या सोल्यूशन क्यों नहीं है, नो कंसेंसस अबाउट द कि लाइन कैसे ड्रॉ करनी है उनको. क्योंकि वो तो देखो ऐसा है कि वेस्टर्न वॉल ऐसे है, दिस इज वेस्टर्न वॉल, अब इसके ऊपर ही वो उनकी अलग सा मोस्क बनी हुई है, तो इसको बाइफरकेट भी नहीं कर सकते. So this is the only solution, international. So both side claims Jerusalem as their capital and a center of religious worship and cultural heritage. ठीक है, refugees, major Palestine lost homes and livelihood. So there is a like issue on refugees, how they would be settled. Divided political leadership on both sides. Both right wing होती है दोनों side, so they use this as a fodder point to gain electoral. तो ये उनके द्वारा भी यूज होते हैं. ठीक है, अब क्या होगा कि लाइक दिस इज वीडियो. अब इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द रिसेंट अटैक ऑन बाय हमास, कि अब रिसेंट अटैक क्यों किए हैं, व्हाट वर द रीजन. एंड ऑल्सो आई वुड डिस्कस इंडिया इजराइल relation after 1950s, how after coming of BJP government
in 2014, there was a major shift between India Israel relationship that was called de-hyphenation. Like for earlier हम क्या देखते थे कि before Modi government, like we would see that Palestine and Israel as a one issue. Now what we are doing, like we have a very good relationship with Israel. In when we compare, हम उसको defense में देखें, we are importing a lot of defense weapons from there. Thereafter, that share of technology, especially in agriculture. Then there are like India has invested there, like Adani has invested in a port there. So हमारे जो relationship है over the period of time have improved with Israel. So thereafter एक काम term हुई de-hyphenation. इसमें क्या होता है कि like we would see Palestine issue as a different and our relationship with Israel as different. सो हम अपने इंडिया इजराइल के जो रिलेशनशिप है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे इवॉल्व हुए वी वुड डिस्कस दैट. So this is a free answer evaluation for beginners. You can send it on my Telegram ID. This is my Telegram channel description, and this is my YouTube channel. Do subscribe to my YouTube channel. Thank you, and thank you everyone.